Around 930 days. What the fuck? 930 days for anything is impressive. In 2017, I picked up Alexa, and the reason why I picked it up because I felt that कि यार ये एक field है जिसमें I will excel very much because I used to watch a lot of movies and series and India में launch होने से पहले से I started working on it and then I think 3-4 months later Amazon gave me an opportunity कि अब कुछ sessions वगैरह होंगे तो you go and helping out because you are one of the senior people. Day one of my internship, they made me cook pav bhaji. मैंने भाई पानी गर्म नहीं किया. Oh my god. I haven't been a big of an open source fan, Okay. which might be very different from other people you host on your podcast. Okay. दिन 10,000 कमा लिए, एक दिन 50,000 कमा लिए, फिर एक दिन 30,000 डुबा दिए. ऐसे करके मैं टेलीग्राम ग्रुप्स पे पहुंचा कि और फिर उसमें मेरे 7-8 लाख रुपए डूब गए. At this point you can either quit or you can have patience. Patience मेरे में कूट के भरा है बचपन से. In today's episode, we talk with Ashish Jha. From maintaining a massive 900 plus day streak of learning Spanish on Duolingo to achieving financial independence by building Alexa apps, his journey is even more interesting than his Twitter banters. He currently works at Okta as a solutions engineer and actively trades in the stock market as a side hustle. In this episode, we learn from him about his 6 years of freelancing experience as one of the first Alexa developers in India, as well as get a peek into his mindset, which helped him retire financially at a young age. This is Ashish on Breaking Prod Season 1. और आशीष, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Muy bien. ¿Y tú? मेरी स्ट्रीक यहीं तक है. इससे ज्यादा नहीं आता मुझे. बाकी तो जितना मैंने नार्कोस और ये शोज देख के सीखा होगा. इंस्पायर तो वहीं से होते हैं सब सीखने के लिए लैंग्वेज. You have how many days? उस दिन क्या बता रहे तुम? How many days you have on? Around 930 days. What the fuck, dude? This You're is learning Spanish only. Yeah, I tried learning French बीच में but पता लग गया नहीं सीखना है. But Spanish is good. why Spanish? I had a very basic reason. I just Googled top 5 languages in the world and उस list में English, Hindi मेरे को already आता था. The remaining 3 were Spanish, Russian and Mandarin. Mandarin is used in mostly just one country, so out. And then Spanish and Russian, the toss-up was between them. I thought I might be traveling more to Spanish-speaking countries. ये सोच के मैंने Spanish सीखना start किया. Russian-speaking countries में is it just Russia or like is it across? नहीं है. It's like Russian, but there are like Ukrainian is a completely different language. But some words are crossover and you can speak. And even like there are lots of Soviet nations where people generally speak Russian from the old people, part of the US. Slovakia types area में still there are. Yeah, Eastern Europe. But वहाँ पे अभी नए लोग भी वही बोलते हैं या फिर like is it? They speak their local languages mostly, but yeah, they are multilingual. Europe में यार that's a good thing. If you run into people, most of them speak at least 2 to 3 languages. हाँ, ये तो है. But then in South Africa, Spanish is impressive. Yeah. But the crazy part which I was thinking is by 930 days, I was telling someone, उसके बाद जब मैंने उस दिन when we met right, तो कुछ मैंने बोला कुछ 900 कुछ इस दिन का है, exactly मेरे को नहीं पता था. So it was like कि मैंने कहा impressive है कहता है. The people are like 930 days for anything is impressive. For that matter, अगर तुम 3 साल तक कुछ करे चले जा रहे हो, 3 साल से थोड़ा कम मतलब I think 2.5. Yeah, almost. When did you start learning? I started learning like 2016-17 में ही because university में I wanted to pick up a new course, but on and off चलता रहता था. Unless you get like a motivation to use that language somewhere, you will not progress further. So थोड़ा सीख लिया, छोड़ दिया. बीच में I think around 2019 or 20 I found a job जिसमें requirement थी Spanish सीखने की, तो उसमें मैंने थोड़ा ज़्यादा मेहनत डाली और फिर एग्जाम वगैरह A1 level भी complete किया Spanish का. Nice. But then वो job मिली नहीं. तो छोड़ दिया. Yeah, but the major trigger जिस पे मेरी अभी की streak जुड़ी हुई है, that happened in 2020. So which is dating a Spanish girl or what? No. It wasn't that. I wish it was that, but it was like I was in my final semester and I had plans to travel around the world for like 2 months. March में start होने वाली थी मेरी trip. March 18 I would leave for Korea. 19 को पहुंचता, मेरा birthday था 19th को, celebrate करता कोरिया में. Nice. Then I will cross the date line. 19th को ही मैं San Francisco जाता, वहाँ दोबारा से celebrate करता. That's a good plan actually, यार, execute करने के लिए. Yeah, then US में मेरा एक hackathon था Stanford में, Tree Hacks. I plan to attend that,
एंड एक और कॉन्फ्रेंस था, वो सब करके फिर वहाँ से यूरोप जाना था क्यूबकॉन के लिए। तो उस टाइम सोचा था क्यूबकॉन में इट वाज सपोज्ड टू हैपन इन एम्स्टरडम, बट मैंने सोचा स्पेन जाऊंगा, स्पेनिश सीख रहा हूँ, थोड़ा यूज करेंगे, ऐसे प्लान किया पूरा। फिर वहां से वापस बैंगलोर आके SIH में पार्टिसिपेट करना, तो पूरा उस टाइम मैं दिल्ली रहता था, तो 2 महीने का मस्त प्लान बनाया तो मैंने। सही में अराउंड द वर्ल्ड कर दिया हाँ यार। भाई, ये पूरा घूम के Legit, वापस मैं- भाई। मेरे दिमाग में ये बोल रहा हूँ, मैं घूम रहा, अच्छा यहाँ से यहाँ गया, फिर इधर से डेट लाइन क्रॉस किया, फिर वापस यूरोप जाके फिर नीचे वापस आ गया। तो मार्च से मई तक का प्लान सॉर्टेड था, एंड आई हैड टू लीव ऑन मार्च 18th, अच्छा एंड मार्च 15 तक तो मैं बाहर जा ही रहा था घर से, बट यू नो व्हाट हैपेंड अराउंड दैट टाइम। मार्च 22 या 23 को लॉकडाउन लग गया, एंड थैंकफुली आई डिडंट लीव, अदरवाइज आई वुड हैव जस्ट उसके पहले होली वगैरह भी थी ना, या तो सब कुछ हुआ था। होली I सबने had- खेली, सब आई हैड इन पर्सन सेशन, एक एक कंपनी में मैंने जाके लोगों को सिखा, एलेक्सा पे मैं सेशन लेता था, तो वो सिखा के आया था मार्च 15 को, एंड उसके बाद से मैं घर से नहीं निकला था। सो आई हैड लाइक वीजास प्लान, फ्लाइट टिकट्स, बुकिंग्स, एवरीथिंग सॉर्टेड, बट इवेंचुअली नथिंग हैपेंड। तो मेरी ट्रिप पूरी डाउन द ड्रेन चली गई, 6 महीने की प्लानिंग पूरी डाउन द ड्रेन चली गई, वीजास एक्सपायर हो गए। तो उस टाइम मेरे को लगा यार ये तो सारा एफर्ट वेस्ट हो गया। किसी ने एक्सटेंड नहीं किया उस टाइम पे वीजा वगैरह, जिन लोगों को कोविड किसी में को फंस पता गया ही नहीं था कि क्या होने वाला है अगले हाँ। 2 साल। वेरी अनसर्टेन सिचुएशन एट दैट टाइम। Correct. सो उस टाइम मेरे को अंदर से जाकर भाई इस बार तो नहीं हुआ, बट द नेक्स्ट टाइम आई गेट टू ट्रैवल आई विल स्पीक इन देयर लैंग्वेजेस। तो तब मेरे को आई हैड अ फील आई शुड स्टार्ट लर्निंग लैंग्वेजेस मोर सीरियसली। Do you pick other languages also? No, I just picked Spanish and I built my own language learning app at that time. Oh, Around April, May nice. मैंने बनाया था Learn Lingo. It's on Alexa, and Okay. that language can be used to learn Spanish, Italian, German, French, and Hindi. Oh. So yeah. So when you speak to You speak in English and it बोलूंगा will तो teach trigger you हो in जाएगा one of those languages. Yeah. तो वो ऐप मैंने बनाई उस टाइम। तो वो लैंग्वेज ऐप बनाने के टाइम में पूरा रिसर्च वगैरह किया, कैसे चलता है, what works for you, what doesn't. तो उसमें थोड़ा और इंटरेस्ट जाग गया लैंग्वेज लर्निंग में। And then I reached out to random people, Duolingo के people, Babbel के people, different apps में जो काम करते हैं उनसे बातचीत करी। थोड़ा मेरे सब क्या मजा आया, वीकेंड प्रोजेक्ट था, किया मस्ती से 5-6 महीने। एक हैकाथॉन में सबमिट किया, उस हैकाथॉन में फर्स्ट प्राइज जीत गया। उस ऐप को लेके सक्सेसफुल प्रोजेक्ट सक्सेस। या ट्रिप का क्यों? खर्चा निकल गया फ्यूचर में। हाँ, और क्या, अगर तुम एक साइड प्रोजेक्ट बना के उसको हैकाथॉन में लॉन्च कर, सॉफ्ट लॉन्च कर दे रहे हो तो क्या दिक्कत है? Yeah, so yeah, वहां से लैंग्वेज लर्निंग। This was in COVID? Yeah, 2020 में हो रहा था ये सब। Damn. तो उसी के बाद फिर Duolingo करने का स्ट्रीक चलती रही और वो चलती जा रही है। भाई साहब, but यार why do you keep doing it? मतलब like eventually I know you will travel to a country, but इंडिया में तो कोई ना बोल पाओगे ना कुछ है, तो like don't you lose that touch in general? See, it helps us. Like I can tell you an instance from last night itself. Okay. So at my work, I was talking to a customer who is based in Mexico, and I traveled to Mexico in Feb. And when we started the call, I started speaking to him in Spanish a bit. And जो confidence हुआ, बंदा friendly हो गया मेरे साथ. I think I work in sales, technical sales. So instilling that confidence and trust, that's part of the process. And when you speak in that language, it's like वो expect ही नहीं कर रहा आपसे कि आप आके उसके ground level पे आप उससे interact करोगे। Part of the customer experience. सीधा brownie points ऐसे आए हैं कि कह ही नहीं सकते। वो एकदम he left the session very happy, so hopefully he converts. Nice. So you work as a solutions engineer at Okta. How, like, I don't know much about the role. So what would you comprise it as? Like sales का role है या engineering का role है, या फिर is it like a sales engineer का जैसा role है? I think the 2 words to define it is technical sales. So if you have a technical product, you need to sell it, and I think you need to have the technical acumen to explain that product to any developer. It's a developer tool. So the people you are speaking to, demonstrating it, talking about integrations, they are developers. They are going to speak tech. And so you need to understand what they are speaking. You need to understand their language. So it involves a background in engineering and development, but it's not like I need to write code to improve my product. I just need to prepare technical demos, presentations, create proof of concepts, show that to the prospective customer, and hope that he converts. But how different then it is to devs? If we compare it directly to development, the main difference is I don't work on the product itself. No, I'm saying DevRel people also do the same thing, right? You can correlate to DevRel, but it's a very different in the aspect that DevRel is mostly outbound. Like you go on to an event, you preach about it, talk in front of 500 people. Their KPIs are different. They track it differently. For me,
I don't go out and talk to any random Hmm. people at a conference. Like if we People set up will be booths, I coming do. in Yeah. for sales. Yeah, then sales you are- people, the actual sales development people, Hmm. they filter out the leads, they bring in the leads Yeah. to me. Hey, this is a person who could be a prospective customer. Hmm. Can you talk to him about our product, show him a technical demo? So we talk to filtered people in that aspect. And yeah, I think we are more closer to affecting a company's revenue than DevRel is. correct. मतलब it's kind of वो था ना last of line वाला Yeah, चीज है. it's also like DevRel Hmm. people go out, spread word about our हाँ. product. Like we have DevRel at Okta as well. Uh-huh. They go out, talk about our product, and then when some enterprise customer comes in, then it goes through a different channel, sales representative, account executive, than to us. So DevRel is more on the marketing side, we are more on the sales side. You used to code ना पहले फिर छोड़ दिया फिर अपन sales में चले गए. Yeah. ये क्या story है? Why is that? I was a developer for like 6 years almost, and I think the main trigger for me to move to this role, the solutions engineering role, was COVID. Okay. Because before COVID, in 2017, I picked up Alexa, and the reason why I picked it up because I felt that कि यार ये एक field है जिसमें I will excel very much, because I used to watch a lot of movies and series and just dialogues चलते रहते थे दिमाग में. और जब पहली बार मैंने Alexa की एक वर्कशॉप अटेंड करी नवंबर 14, 2017 को, तो वहां पे पता लगा कि यार ये तो बहुत सिंपल है. उससे पहले मैं बहुत जगह हाथ मार रहा था, ML कर रहा था, एंड्रॉइड कर रहा था, वेब कर रहा था, जो सारे बच्चे करते हैं सेकंड ईयर के. 10 जगह हाथ मार रहा था, पता नहीं है क्या कर रहा हूँ, ब्लॉकचेन कर रहा जो हूँ. देख रहे होंगे वो भी. जनरलाइज कर दिया भाई. देखो आपको करना पड़ता है, आपको पता नहीं है कि विच फील्ड. करेक्ट. बट जो मैंने पहले दिन उनकी वर्कशॉप अटेंड करी, फिर मेरे को उस दिन अचानक से हिट हुआ कि भाई ये तो फील्ड है जिसमें मैं सही में एक्सेल कर जाऊंगा. ये तो मेरे को पसंद आ रही है, देख के मजा आ रहा है. बाकी में हो सकता है कि मैं मेहनत करूँ तो एक्सेल हूँ या नहीं हूँ, कोई गारंटी नहीं, पर इसमें तो मैं हूँगा. ये तो मैं खुद को बता रहा हूँ, लिख के दूंगा. तो वही हुआ. आई जस्ट थॉट कि इसमें तो बस मेरे को ये पता करना है कि यूजर क्या बोलेगा, एलेक्सा क्या रिप्लाई करेगी. तो इट्स मोर लाइक स्क्रिप्ट राइटिंग, और मुझे मूवीज देखने की आदत है, डायलॉग्स बनाने की आदत है. इस सेंस में मैंने कभी नहीं सोचा होगा, टू बी ऑनेस्ट. यस, मैंने यही सोचा कि ये तो कन्वर्सेशन, डायलॉग डिजाइन, यही सब है. तो ये, और मुझे इंग्लिश, स्कूल में मैं इंग्लिश में टॉपर रहता था हमेशा. सो मेरे स्कूल में जैसे कुछ बच्चे थे जो 6th क्लास से फिटजी वगैरह में जाते थे, और पीसीएम में पेल देते थे वो सबको. तो और मैं था कि भाई मैं अपने ग्रुप का लीडर था. मैं कहता कोई नहीं, पीसीएम में हार जाएंगे, इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस में मैं मार के आऊंगा. डोंट वरी. आई रिलेट विद दैट ब्रदर. मैं खुद ही इंग्लिश, मतलब वर यू फ्रॉम आईएससी और व्हाट? सीबीएसई में ना. मेरा आईएससी में भी सेम ही चीज था कि मेरे को लगता था कि अगर टू बी ऑनेस्ट अगर इधर नहीं आया होता तो मेरे को तो लोग बोलते थे तुम तो डीयू में लिटरेचर ही पढ़ रहे हो. I was like, हो सकता है, like that could have been a possibility. या सो वो इंग्लिश का प्यार, और बचपन में बहुत नॉवेल्स पढ़ना और फिर मूवीज सीरीज देखना, ये सब कल्मिनेटेड इन मी पिकिंग अप एलेक्सा एज अ फील्ड. एंड फिर जब एलेक्सा पकड़ा तो बहुत नेसेंट स्टेजेस में था. इंडिया में लॉन्च होने से पहले से आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट. तो उसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती, लाइक स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन हैकाथॉन्स, एंड Amazon के लोग नोटिस करने लग गए that who is this guy who is participating in all the and the biggest thing for me was कि मैंने कोल्ड ईमेल किया जेफ बेजोस को, वो Amazon वालों ने पिकअप कर लिया. तो वो ये था कि Alexa launched in US and Europe 2016-17 and they had a program कि आप Alexa की ऐप बनाओ, उसमें 100 यूजर्स आ जाएंगे तो आपको वो Echo फ्री में देंगे. और अगर तुम बनाओगे सिर्फ तो टी-शर्ट आती है. वो सब तो बात की बात है. Echo की बात थी तो मैं तो यार बच्चा था उस टाइम कॉलेज का, मेरे को तो फ्री की चीज चाहिए. तो सेकंड ईयर में मैंने ऐसी वो वर्कशॉप अटेंड करके सीख के गेम ऑफ थ्रोन्स की क्विज बना दी. भाई 100 यूजर से इन अ मंथ की बात थी. एक दिन लॉन्च के में मेरे 1000 यूजर आ गए. ओह माय गॉड. एंड देयर वाज नो सच प्रोग्राम इन इंडिया. उस समय हिट भी चल रहा था एक्चुअली, उसमें बहुत सही सीजन चल रहा था ना, 17 की बात है. हां 17 में. हां आई थिंक इट वाज प्री फिनाले मेरे ख्याल से, नहीं कुछ या 5th या 6th सीजन था ऐसे कुछ. तो इंटरेस्टिंग सीन चल रहा था उस समय. बट द थिंग वाज कि इंडिया में कोई ऐसा प्राइस था ही नहीं कि आपके यूजर. तो मेरे को इतना बुरा लगा कि वहां 100 यूजर पे आप दे रहे हो, इंडिया पे क्यों डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो. मैंने बहुत ही एक स्ट्रांगली वर्डेड ईमेल लिख दिया जेफ बेजोस को, व्हाट इज दिस डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑल. ओह माय गॉड. एंड देन दैट गॉट रूटेड. उसको गया था, एस्केलेट हुआ. फिर इंडिया की जो डेवलपर मार्केटिंग टीम थी एलेक्सा की, वो सब मेरे को फोन किए डायरेक्ट, या आपका मेल मिला, आपका ऐप ट्राई किया हमने, बहुत अच्छा है, लेट्स टॉक. ऐसे ऐसे कनेक्शंस बन गए मेरे इस तरह से. फिर उनके और कंपटीशंस वगैरह होने, और फिर मैंने ये मेल आई थिंक अराउंड दिसंबर में भेजा था, जनवरी 1 को इंडिया में लॉन्च हो गया वो. आई फील लाइक आई प्लेड अ पार्ट इन ओह माय गॉड सबके लिए. एंड देन उसके बाद हर महीने फिर मैं कुछ ना कुछ बनाते जाता था, यूजर्स आते थे, गिफ्ट.
20-25 $1 तो मैंने कमा लिया हर महीने पार्टिसिपेट Crazy करके भाई, इन challenges crazy. में एंड या टी-शर्ट्स भी हर महीने आती भाई थी तो क्या तुमने क्या दुकान लगाना शुरू किया कि नहीं? या मैंने शायद अपने पूरे गांव में बंटवा दिया Oh my God. सारे रिलेटिव्स को दे दिया घर घर के लोग गेम ऑफ थ्रोन्स क्विज खेल रहे हैं गांव में बैठ के. yeah, it was fun because but the best part was कि now I had a direct line with the people who were actually working on Amazon Alexa तो उनके साथ फिर competitions वगैरह डिजाइन किए उन्होंने एक hackathon लॉन्च किया उसमें they had put a like list of college जिसमें से लोग पार्टिसिपेट करेंगे भाई ड्यू का नाम नहीं था तो मैंने उसके लिए भी लड़ाई की फिर भाई तो भाई की कलेशी आदत पुरानी है, आज की नहीं है ये. हक के लिए ये लड़ना हक के लिए लड़ना है, अगर नहीं खुद नहीं लड़ रहा होता तो दूसरे आए होते लड़ने के लिए. तो यही सब हो रहा था कि डेवलपमेंट में करता था खुद के एप्स बनाता था एंड इससे पहले जो भी करता था वो सब छोड़ दिया मैंने क्योंकि अब मेरे को इसमें मजा आ रहा था और ये टेक था क्योंकि Node.js AWS पे पूरा काम होता था हमारा तो वो भी बढ़ रहा था और कॉलेज में प्रोजेक्ट्स होते उसमें भी चल जाता था तो लाइफ वाज गोइंग गुड पार्टिसिपेट एंड देन आई थिंक 3-4 months later Amazon gave me an opportunity कि अब कुछ सेशंस वगैरह होंगे तो यू गो एंड हेल्पिंग आउट बिकॉज यू आर वन ऑफ द सीनियर पीपल आई वाज लाइक 6 months कर रहा हूँ अभी सीनियर बन गया हूँ भाई तो और क्या इस फील्ड में एंड यही सब स्टार्ट हो फिर मेरी पहली इंटर्नशिप लगी सेकंड ईयर में फर्स्ट ईयर में तो वो सर्टिफिकेशन कोर्स किया था कोडिंग जैसे दैट डजंट काउंट सेकंड ईयर में फिर ये पहली प्रॉपर इंटर्नशिप लगी लेकिन उस समय तो इंटर्नशिप ऐसे लिखते थे उसको सर्टिफिकेशन भी किया है मैंने और उसमें ऐसे जाके लिंक्डइन पे कोडिंग निंजा भी डाल देते थे उठा के ये भी था भाई मैं बट ये भी था मैंने ये भी किया टीए तो स्टिल इज अ लेजिट जॉब यार इसमें क्या पार्ट ऑफ कोहॉर्ट कैसे करके बैच 1 ये सब भी डाल देते लोग भाई लिंक्डइन पे एक्सपीरियंस के जब भाई फर्स्ट सेकंड ईयर में चलो ये सब समझ आता है कि हम सब उस रास्ते से गुजरे हैं बट या सेकंड ईयर में मेरे इंटर्नशिप लगी संजीव कपूर के अंडर जो शेफ है ओके तो या सब खाना नहीं बनाना था खाना भी बनाना था बट दैट वाज नॉट द प्राइम जॉब ओके सो ही हैज अ टेक कंपनी अंडर शेफ उनका कोलैबोरेशन एक और कंपनी के साथ है टाइनी शेफ उस टाइम क्लो शेफ नाम था उस कंपनी का व्हेन आई इंटर्न सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई केम टू बैंगलोर इंटर्न करने के लिए एंड वहां मेरा रोल यही था एलेक्सा इंजीनियर I did a quick LinkedIn पे सर्च किया कितनी Alexa की जॉब्स एग्जिस्ट करती हैं जून 2018 में they were literally like 5 सब में अप्लाई कर दिया सब बुला रहे हैं भाई अब सीनियर हो ना तुम वही लोगों को मिले फिर मैंने कहा ये बैंगलोर अच्छा लग रहा है बैंगलोर चलते हैं फिर तो ये सब तुम पहले घर से कर रहे थे मतलब हाँ वो तो उससे पहले तो यार हैकाथॉन्स वगैरह पर्सनल प्रोजेक्ट्स यही सब चल रहा था तो वो सब तो मस्त चल रहा था फिर मैंने इंटर्नशिप लगी और फिर नाम भी थोड़ा बड़ा लगा घर वालों को भी पता संजीव कपूर कौन है सही बात है तो आया वही उनकी बेसिकली एक कुकिंग ऐप थी जिसपे यू हैव टू टेल कि आपके पास क्या इंग्रेडिएंट्स है और वो रेसिपी आपको स्टेप बाय स्टेप बताएगा जिन लोगों को कुकिंग उतने अच्छे से आती नहीं उनके लिए काफी सही ऐप थी और मेरा रोल बेसिकली था उसी ऐप को इम्प्रूव करना एंड डे 1 ऑफ माई इंटर्नशिप दे मेड मी कुक पाव भाजी मैंने भाई पानी गर्म नहीं किया और बस वो ऐप यूज करके एंड आई मेड इट और खाने लायक था भाई खा लिया उस दिन मतलब यहाँ पे स्किल सिर्फ इतना नहीं कि तुमको सही रेसिपी लेके आनी सही से बनाना भी तो है जब मैंने सब बना दिया उसके बाद मेरा जॉब था कि अब क्या फीडबैक है चलो इम्प्रूव करो ऐप को That's a full good way. Pav Bhaji fooding. Yeah. So वही 2 महीने हुई internship, but that internship made me realize that I'm never going for a full-time job ever again. क्योंकि कुछ चीजें realize हुई कि भाई कैसे होता है काम, micro management क्या होती है, ये सब चीजें realize हुई. ये this was in 2018 Tiny Chef के उसमें. हाँ, इसी में 2018 में हुआ ये सब तो but या उस टाइम के बाद मेरे को थोड़ा ऐसे रिमोट फ्रीलांसिंग मैंने फाइवर वगैरह करना शुरू कर दिया था तब तक अच्छे से Alexa में हाँ Alexa एप्स पे ही तो उधर से थोड़े बहुत आने लग गए थे लीड्स तो मैंने कहा कि चलो घर जाते वैसे भी तो सेकंड ईयर का हो यार जॉब की क्या जल्दी है क्रेजी सही बात है भाई तो कोई प्रेशर था ही नहीं वैसे ही एक बंदे ने रीच आउट किया यूएस का कोई बंदा था उसने एक छोटा सा प्रोजेक्ट दिया प्यूरेल करके एक कंपनी है जो हैंड वॉशिंग बनाती है उसका ऐप था वो मेरा पहला मेजर ब्रांड था जिसके लिए मैंने फुल फ्लेज्ड ऐप बनाया तो वो बनाया मैंने प्यूरेल का ऐप तो उसको वो काम बड़ा पसंद आया मैंने उसको 6 घंटे में पूरी ऐप बना के दे दी थी प्यूरेल क्या बोलता है मतलब सेकंड्स काउंट करता है इट्स लाइक हाथ धो रहे हो उसके वही यार हैंड वॉशिंग हैबिट्स वगैरह की बेसिक ऐप वही हैबिट्स Alexa back in the day was just a vanity thing other than your मार्केटिंग गिग था बेसिकली iOS ऐप है एंड्रॉइड ऐप है तो Alexa पे भी आ जाओ बजट है लगाओ सही बात है तो इसलिए सारी कंपनीज वर ट्राइंग टू डू समथिंग फन इनोवेटिव in that space and yeah it was fun but वही है कि यूजर्स ने कैच अप नहीं किया that it phased down हाँ मतलब मेरे लिए अगर because I am like now for around 8 months a very avid Alexa user right और मेरा भाई please एक सेकंड मेरे को देना मेरे को एंजाइटी हो रही है ये अगर म्यूट कर दो उसको I need to fucking mute this तो I have been अब सही है अब मैं खुल के Alexa बोल सकता हूँ ताकि वो ट्रिगर ना हो जाए बीच बीच में
तो आई हैव बीन an avid Alexa user for 8 months and मैंने to be honest या तो Amazon का उस पे ऐड आता है वो जो बोलता है कि आपने ये प्रोडक्ट खरीदा था 3 महीने पहले इसका रेटिंग क्या है तो वो रेटिंग आ जाती है या फिर मोस्टली आई यूज इट टू प्ले सॉन्ग्स एंड इट्स इजियर फॉर मी टू प्ले सॉन्ग्स why were these companies even like pushing and are they even pushing now is it like a thing Not now really, but I'll died? tell you my uses. भाई जितना 6-7 साल मैंने Alexa के लिए एप्स बनाई ना कसम से खुद नहीं यूज करता था मैं बस अपना Alexa डिवाइस तभी लगाता था प्लग पॉइंट में जब मेरे को अपनी एप्स टेस्ट करनी होती थी एंड देन आई एम डन मेरे घर में और 3-4 Alexa लगे हुए थे बट आई थिंक मेरे से बहुत ज्यादा मेरी मम्मी यूज करती थी गायत्री मंत्र बजाने के लिए यही वही ये कुछ इस सब तरह का गाने वाने बजाने के लिए Correct, तो इन सब correct. चीजों के लिए बहुत ज्यादा यूज था पर्सनली कोई दूसरे की ऐप टेस्ट करनी होती थी या अपनी ऐप टेस्ट करनी होती थी मेरा उतना यूज केस था ऐसे कुछ डेली लाइफ का मेरा कुछ यूज केस था ही नहीं एंड ठीक है जब मैं एज अ डेवलपर नहीं यूज करता था मैं दूसरों को फिर क्या ही बोलूं but how was the money in that was it good money or Oh, it was amazing money. It helped me achieve fire by 2022 itself. So yeah, अब तो wing कर रहा हूँ life को मैं. But oh it nice. was good money because I was the first mover, and if you are a first mover in any field, you can make good money. But the crazy part is how do you even figure out हाँ. like where do you want to even spend see अगर देखो बहुत सारी फील्ड ऐसी हैं जिसमें लोग देख रहे होंगे कि यहाँ कुछ नया है बट वहाँ घुस नहीं रहे होंगे right how do you even make like your mindset कि यार मैं इसमें घुस जाता हूँ देखा जाएगा Well, honestly, I think ना मेरा यूनिवर्सिटी वगैरह बहुत बड़ा रोल प्ले किया इस केस में. okay क्योंकि मैं ड्यू से पढ़ा हूँ. मेरी साल की फीस 10,000 रुपए थी. okay तो और अटेंडेंस रूल नहीं था. तो कोई प्रेशर नहीं था मेरे ऊपर कि मेरे को भाई पढ़ना है जॉब लेनी है. प्लेसमेंट्स हमारे यहाँ होती भी नहीं थी. और तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं था. तो फर्स्ट ईयर पूरा कुछ हाथ पैर मार रहा हूँ 10 चीजों में. लाइक मुझे भी Alexa पे आने में 1.5 साल लगा. 1.5 साल मैंने बहुत चीजें ट्राई करी which will work out. So there is no straight path to it. But 1.5 साल is still a very impressive time to figure out to be honest. You get lucky sometimes. Yeah, you get What lucky. would have happened if I had not attended that meetup that day? Correct. मैं कभी Alexa पे आता ही नहीं बट मेरी ये आदत अच्छी बन गई थी कि मैं जाता था देखने के लिए. भले ही हमें उस टाइम माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस जाके बड़ी खुशी मिलती थी. एज अ फर्स्ट ईयर किड भाई फोटो खींचेंगे लोगों के साथ. बड़े लोग हो गए हम तो बट ठीक है वो आदत आपको बनानी पड़ेगी. इंट्रोवर्जन से निकलना पड़ेगा. थोड़ा दिल्ली में रहने का फायदा ये था कि इवेंट्स होते थे you were able to go and attend. That exposure was there I think. Yeah. वहाँ पे तभी. बट वो भी आपको एफर्ट खुद से लेना पड़ता. मेरे ही बैच में भाई 39 पीपल और थे. वो लोग तो नहीं जाते थे बट मैंने एफर्ट डाला खुद से जाने का. इनिशिएटिव तो आपको ही लेना है. तो वो जाके आपको पता चलेगा कि दुनिया में है क्या क्या टेक्नोलॉजी. लोगों को वही नहीं पता होता है. अब वहां मैं गया वहां से सारी चीजें बटरफ्लाई इफेक्ट की तरह चलती रही है. इवेंचुअली आई लैंडेड दिस. When was your first मतलब payment for Alexa? Oh, I think that was around, like after how you like कितना टाइम लगा तुमको first payment? I started Alexa in November 2017 and गिफ्ट्स वगैरह तो आने शुरू हो गए थे बट एक्चुअल पेमेंट कैश वो आया था Feb 2018 में. So Still a decent time. 4 months. हाँ 4 months में मैंने सीखा सबको एंड इट वाज लाइक अ न्यू फील्ड. सो मेरे नीश फील्ड था कुछ कोई था ही नहीं करने वाला. और मेरे लिए भी सीखना वाज अ बिट डिफिकल्ट बिकॉज़ रिसोर्सेज भी नहीं थे सीखने. करेक्ट. सो आई हैड टू लर्न इट द हार्ड वे बाय रीडिंग डॉक्स जो कि सारे डेवलपर्स अवॉइड करते हैं मोस्टली. Amazon के डॉक्स जनरली मतलब थोड़े से ट्रिकी हैं नेविगेट करना. आई एग्री. AWS के डॉक्स तो और ज्यादा tricky है भाई. अरे क्योंकि तब 20 when he's saying this ना क्योंकि मैंने 2018 में मेरे को यही वाला ऑफर दिखा था Echo Dot वाला और टी-शर्ट वाला. मैंने कहा यार Echo Dot तो थोड़ा ज्यादा वो है मतलब Echo Dot तक तो पहुंच सकते हैं बट उस समय मैंने Alexa पे एक ऐप बनाया था कुछ तो मीम वाला था कि अगर कुछ तुम मीम का कुछ बोलोगे तो शायद वो कंप्लीट कर देगा मीम का या ऐसा कुछ था उसमें. या फिर एक रैंडम तुमको कुछ ना कुछ वो कोट वगैरह टाइप के ऐप होते हैं ना उस तरह का टू डू लिस्ट टाइप ऐप होता है वो तो Alexa के लिए. तो पहले वो बनाया फिर ये मीम वाला बनाया. ये मैंने सबमिट कर दिया उस पे और मैंने गलती से 2 बार सबमिट कर दिया और वो 2 बार मान भी गया. सेम आईडी पे 2 बार सेम ऐप चल गया. और उस समय तक मुझे कुछ नहीं पता था. तब मैंने सीखा था कि लैम्डा कैसे काम करता है उसमें कैसे सर्वलेस फंक्शन कैसे काम करता है उस कॉन्सेप्ट क्या है. मेरे को तो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता था कॉन्सेप्ट क्या क्योंकि आई हैड लाइक वेरी लेस डेवलपमेंट नॉलेज. आई हैड कोडिंग नॉलेज बट वेरी लेस डेवलपमेंट नॉलेज. तब क्योंकि मैंने नहीं सोचा उस चीज में क्योंकि वो चीज जब गई तब लोगों को समझ में आया कि ओ अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं ऐसे टी-शर्ट मिलती है. तो और लोगों ने फिर किया वो काम. बट टू बी ऑनेस्ट आई थिंक यू आर द फर्स्ट पर्सन हु हैव सीन एक्चुअली गेटिंग सीरियस ऑन दैट शिट. राइट. तो इसलिए आई वाज क्यूरियस कि मतलब व्हाई डू यू इवन पुश. ये फिलॉसफी थी कि आई विल बी अ मास्टर ऑफ वन. जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बन के कोई नहीं पूछेगा मुझे. तो मास्टर ऑफ वन बन के जाऊंगा एक ही फील्ड पकड़ूंगा उसी में फोड़ दूंगा. एंड भाई अलग भी दिख रहा था ना यार. मैं ड्यू से था बाकी सब तो मेट के
किसके बीवीपी के, आईआईटी दिल्ली, डीटीयू, हाँ। बड़े बड़े कॉलेजेस के लोग थे। अब हाँ। उनके आगे डेविड वर्सेक गोल आया तो कैसे खड़ा होगा? तो उनकी फील्ड में कैसे कम्पीट करूंगा बड़े लोगों से? हाँ। तो एक अलग फील्ड पकड़ता हूँ, उसमें मैं भगवान बनता हूँ, फिर Correct. देखूंगा, फिर करेक्ट आके एटलीस्ट आई विल। तो स्टार्टिंग उस तरह से हुई थी, बट उसके बाद फिर कहते हैं ना, मजबूरी में शुरू किया तो फिर मजा आने लगा। फिर वो आई एम लाइकिंग हाउ इज मेकिंग सो मेनी मूवी रेफरेंसेस I watched a lot of them, man. दैट इज एक्चुअली गुड। मेरे को बहुत इंटरेस्ट आता है, जैसे कोई कॉन्वर्सेशन अगर ऐसे मेटाफर्स उसमें चला जाता है ना, वो इंग्लिश वाला कीड़ा है और कुछ नहीं, कि अगर कॉन्वर्सेशन मेटाफर और कुछ ना कुछ और ऐसा फिगर ऑफ स्पीच घुसा दो तो इट जस्ट बिकम्स इंटरेस्टिंग। बट देन यू सेड यू वांटेड टू बी मास्टर ऑफ वन, बट उसके बाद व्हेन आई वाज टॉकिंग टू यू उस पे यू हैड लाइक सो मेनी थिंग्स टू डू एंड नाउ यू आर डूइंग अस वर्क एट ऑक्टा। उसके पहले यू वर समवेयर समटाइम यू वर एट क्रायो, राइट? फिर उसके पहले आई थिंक यू ट्रैवल आल्सो अ लॉट। तो देन हाउ इज इट aligning with चीजें that? चेंज हो गई आफ्टर दैट इंटर्नशिप। उसके बाद मेरे को जैसे प्यूरल का कॉन्ट्रैक्ट आया, उसके बाद उस कंपनी को काम पसंद आया, दे स्टार्टेड गिविंग मी मोर वर्क एंड उसी कंपनी के थ्रू मैंने रीबॉक के लिए प्रोजेक्ट बनाया, डियाजियो व्हिच आई वाज टेलिंग अर्लियर, इन सब के लिए प्रोजेक्ट बनाया, बहुत सारे अच्छे अच्छे वार्नर ब्रोस म्यूजिक, इन सब के लिए प्रोजेक्ट बनाया। तो एज अ सेकंड ईयर थर्ड ईयर स्टूडेंट ये बड़े बड़े नेम सुन के भाई, हाँ, मैं मतलब तो सही बात बड़ा है। काम बट कर हाउ रहा हूँ। डिड यू लाइक just through organic contracts? Yeah, these were organic. Like they reached out to me directly through different channels, LinkedIn, वगैरह But पे। do you used to post a lot on this? I used to mostly post my wins, अच्छा, hackathons वगैरह के बारे हाँ, में and all that. LinkedIn पे? Yeah, LinkedIn, Twitter, उधर से ही मेजर मेरे को कॉन्टेक्ट्स आए। और बाकी जैसे हमारी कम्युनिटीज बन जाती थी, जैसे हाँ। Alexa developers were like a very small Very group of small. people, and then people used to post their requirements, Mhm. and comparatively me being in India gave me the edge of pricing it slightly lower than my counterparts in US and Correct, Europe. correct. So yeah, like that's one thing I will tell to anyone who is looking to start freelancing. भाई अंडरकट करना पड़ेगा स्टार्टिंग में। तुम चाहोगे डे वन में तुमको बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाए, ज्यादा पैसा नहीं हाँ। मानने वाला, बहुत क्योंकि लोग हैं। तुम देख रहे हो एक्चुअली उन लोग का प्राइस पॉइंट जो यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, और मे बी आर सिटिंग इन अर्निंग इन डॉलर्स, मे बी इन डॉलर कंट्रीज, तो वहां पे हो सकता है एक डिफरेंट प्राइस Yeah, सेगमेंट। true. बट वो पहुंचे भी है ना वहाँ पे। इट नेवर हाँ। स्टार्ट्स विद कि $100 पर आवर से डे कभी वन नहीं से होगा। कभी नहीं हो सकता वो। हाँ। Like एक सेम ऐप का फाइवर पे आई स्टार्टेड डूइंग इट एट लाइक अराउंड $10 or $15। हाँ। उसी सेम ऐप का प्राइस में इंक्रीज करते करते $65 तक ले गया था सेम एफर्ट का। बट देन देयर स्टार्टेड अदर पीपल स्टार्टेड डूइंग द सेम थिंग एंड दे स्टार्टेड अंडरकटिंग मी डूइंग व्हाट आई डिड टू समवन एल्स। फिर मेरे को भी अपना प्राइस डिक्रीज करके वापस 10-30 पे लाना पड़ा, ताकि बट दैट्स हाउ फ्रीलांसिंग मार्केट वर्क्स कि आपको sooner or later you have to undercut. People don't understand. They start comparing their chapter Yeah. 1 with someone else's chapter 10. Exactly. That's the wrong thing to do. You need to see where that person started from. ऐसे हाँ। सीधा तुम नहीं जा सकते हो इतने बड़े उसमें। भाई ये बात तो है। टेस्टिमोनियल्स चाहिए, नाम हाँ, चाहिए। उसके correct. बाद ठीक है आपने ये कर लिया थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद खुद लोग रीच आउट करेंगे, $100 का प्रोजेक्ट्स देंगे खुद से। तो मेरा sense. मोस्टली फिर काम वर्ड ऑफ माउथ से ही होने Did you लगा। work for free also sometime? लॉट ऑफ टाइम्स कि जैसे कुछ अच्छे इंस्टीट्यूशंस आए, ब्लाइंड इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल, हाँ। जिनके लिए यार डॉग रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट For nobility मतलब। या मतलब अच्छा लगता। देयर वर लाइक देखो सेल्फिश बेनिफिट इन्वॉल्व, ताकि मैं भी अब इसके बारे में जाके पोस्ट करूंगा, मेरा भी ब्रांडिंग होगी थोड़ी Correct, कि correct. देखो मैंने इसके लिए बनाया, वो लोग मेरे को कहीं और रेफर देंगे, तो इट्स हाँ। जस्ट लाइक एन इन्वेस्टमेंट। मेरा मुश्किल से 5 घंटा 6 घंटा लग रहा है जो मैं वीकेंड पे कर दूंगा, बट ये बंदा अगर मेरा नाम लेगा किसी के सामने जाके, अपनी मेरी एड चला देगा अपने रेडियो स्टेशन पे, तो इट विल हेल्प मी इन अदर वेज। तो ये भी क्या, और दूसरे तरीके का फ्री हुआ जिसमें मेरा पेमेंट नहीं मिला कभी। ये किसने कर फ्रीलांसिंग में तो ये होता ही है, एक बार धोखा खाना पड़ता है। कितनी बार बहुत बार खाया है भाई। इसमें तो ऐसा है कि मतलब मोस्टली तो देखो ट्रस्टेड क्लाइंट्स ही करते हैं ये काम, Oh my God. कि Okay. पहली बारी में कोई आपका काट के नहीं जा सकता। हाँ। पहली बारी में तो यू यूज दिस प्लेटफॉर्म्स कि आपको पैसा एस्क्रो में आ जाए और हाँ। आ जाए आपके अकाउंट में। अपवर्क वगैरह पहले ही क्लाइंट से पैसा ले लेते हैं, काम कंप्लीट होने के बाद आपको भेज देते हैं। बट लेट्स से यू स्टार्ट बिल्डिंग ट्रस्ट एंड दीज अपवर्क, फाइवर, दे चार्ज 20%, व्हिच इज वेरी हेफ्टी। अब $1000 में से $200 वही ले गया, और उसका मोदी जी ले गए बाकी का, तो मुश्किल हो जाता है यार काम। सही बात है भाई। तो इसलिए इसलिए इसमें तो टैक्सेस भी अलग होते होंगे नहीं, इंटरनेशनल हाँ 44 ADA चलता था हमारा। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंट। तो इस चक्कर में आप उनसे डील करने लग जाते हो ऑफ द प्लेटफॉर्म, हाँ। जस्ट टू सेव दोस 20% फीस। जब तक चल रहा है बढ़िया है, लेकिन जिस दिन कटा तो कट जाता है। हाँ। मेरा एक बंदा $10,000 USD लेके भाग रखा है। Oh my God. कहाँ हो बंदे, आ जाओ। 10,000 And USD that was बचा the हुआ है। person who I built those Purell and Oh, Reebok the and- same- Yep. ये तो बहुत कनेक्ट कर दिया तुमने। Yeah. सर्कल कर दी भाई पूरी हाँ। स्टोरी। So yeah, like मतलब उसके साथ इतना ट्रस्ट है कि 3-4 साल काम किया है। और लास्ट प्रोजेक्ट हमारा इट वाज अ बार कार्ड प्रोजेक्ट, उसमें फिर पेमेंट नहीं मिली, घोस्ट कर दिया उसने। And I was like,
क्या ही कर सकता हूँ. हाँ. There is it's just a verbal agreement. I can't sue him or anything like that. तो these are the nuances of freelancing. अगर आपको सेफ्टी चाहिए तो भाई दे दो 20% उस प्लेटफॉर्म को. ये बात तो है. नहीं तो फिर प्लेटफॉर्म पे कैसे ये लोग पहले पेमेंट करते हैं ये They लोग. just block it off. Keep वो it. प्लेटफॉर्म आपका उससे पैसा लेके रख के संभाल के रखने का वो 20% लेता है ताकि ऐसे डिस्प्यूट्स ना आए. हाँ वैसे ही बात है. मतलब अगर 10,000 USD का ठीक है हाँ, चलेगा. That still works. तो यही सब होता था. तो बट फिर भी काम मिलता गया फ्रीलांसिंग में. फिर एक यूके का स्टार्टअप ने मेरे को अप्रोच किया ऑन अ रिटेनर रोल. हर महीने उनको जरूरत थी तो अच्छा वो काइंड ऑफ मेरा फर्स्ट फुल टाइम था. और इसी टाइम में मेरे को जीसॉक करने का भी जोश चढ़ गया था क्योंकि भाई मैं CICDU से हूँ. ऑलमोस्ट सब करते हैं वहाँ. ट्रेंड है वो तो. ट्रेंड है यार कि करना ही है. मतलब जब ज्वाइन किया था मैंने 2016 में वो कॉलेज, तभी मैंने अपने सीनियर्स को देखा था. भाई साहब 6500 USD मिलता है. इतनी तो सैलरी होती है. 6500 थोड़ी मिलता था उसमें. 2016 में मिलता था. What? फिर हाफ हो गया था ना उसके बाद. मेरे को 3500 हाँ मेरा सिमिलर था. 3500 वाला था. 2500 मिला था 2020 में. 2020 में हाँ. कम हो गया था और I हाँ, think 30,000 था उससे $1000 ज्यादा मिला था मुझे. 2-2.5 लाख रुपए आए थे. हाँ उसमें 215 टाइप्स ऐसे ही मेरा भी था उसमें. हाँ. तो भाई जब शुरू में हुआ था 6500 देख के भाई हिल गए थे हम लोग. ऊपर से फिर कुछ लोगों को बाहर भी जर्मनी वगैरह बुलाया था. अबे 6500 इज लाइक क्रेजी मनी. ठीक है मेरे ख्याल से उस टाइम PPP नहीं लगाया था. हाँ उस टाइम PPP नहीं लगता था इसलिए हुआ था ये. जब 2020 वाले में मेरे ख्याल से लग गया था उन्होंने PPP. परचेज पैरिटी लगा के उसको 50% कर दिया था वहां से. एंड अब तो बिल्कुल ही वो कर दिया. अब तो बिल्कुल ही खत्म हो वेस्ट गया. है. वेस्ट हो मत गया करो यार. जीसॉक भाई. मत करो भाई अब सच में. क्योंकि जब मैंने भी अब- किया था आई वाज अर्निंग डिसेंट मनी इन फ्रीलांसिंग. तो मेरे हाँ. को भी जस्टिफाई करना थोड़ा मुश्किल था इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट. हाँ. बट जो मेरा प्रोजेक्ट था ना वो बहुत तगड़ा था क्योंकि मैंने ही सजेस्ट किया था. काइंड ऑफ मैं ही मेंटर था, मैं ही स्टूडेंट था. क्योंकि एलेक्सा का प्रोजेक्ट था और किसी को एलेक्सा पता नहीं था मेरे ऑर्ग में. ये कौन कंपनी करवाई थी? रॉकेट चैट था. रॉकेट चैट एग्जाम करवा रहा था. तो ऐसा होता है ना ऑर्ग्स में कि आप अपना प्रोजेक्ट सजेस्ट कर दो. अच्छा. तो मैंने अपना ही सजेस्ट किया था कि हम ये कर सकते. देखो आप चैट प्लेटफॉर्म हो. हाँ. यू आर ऑलरेडी ऑन लाइक वेब ऐप है आपकी, डेस्कटॉप ऐप है, एंड्रॉइड ऐप है, iOS ऐप है. एलेक्सा की ऐप कहाँ है आपकी? एलेक्सा नया प्लेटफॉर्म है, बनाओ यार. हाँ, सही ये बात है. बोल के मैं गया. फिर You have उसमें money to invest in me. एग्जैक्टली गूगल पैसा दे रहे थे मुझे थोड़ा. तो उसके लिए और मेरा इतना सही किस्मत था कि जो टॉप 2 पीपल थे रॉकेट चैट के वो मेरे मेंटर्स थे. CEO गैब्रियल एंगल और जो इनके जीसॉक प्रोग्राम का हेड था सिंगली. हाँ. तो ठीक है सीखने के लिए तो मेरे लिए कुछ था नहीं क्योंकि सब मेरे को ही आता था. बट उनके साथ बात करके बाकी चीजें सॉफ्ट स्किल वगैरह काफी I think you learn like other aspects of just like after development whatever happens. Exactly. That's what you learn. It's not just about tech क्योंकि आपको और भी processes होते हैं कैसे Correct, handle करें. And then you discuss with people with lots of experience. You learn lots of things. तो वो मेरा प्रोजेक्ट था. लाइक मैं I haven't been a big of an open source fan. Okay. Which might be very different from other people you host on your podcast. Okay. And that was just because of one reason. I had a very negative experience कि Okay. एक बार पहले जब मैं बच्चा था सेकेंड ईयर का तो जो भी ऐप बनाया मैंने गिटहब पे डाल देता था कोड ही ऐसे करके. तो या सब रिपोजिटरी में कोड कमिट करेंगे. सारे ऐप्स ओपन सोर्स कर दिए. तो ऐसे एक दिन मेरे को एक कोल्ड ईमेल आता है कि वी आर बिल्डिंग अ क्रिप्टो ऐप ऑन एलेक्सा. these are the requirements. We saw you have a similar app. Can we buy your app for $500 USD or something? मैंने कहा या I will love to sell. भाई 40,000 रुपए मिलेंगे लो. 2 दिन बाद मेल आता है oh sorry I found your source code. सीधा यही बोल रहे Fucking hell भाई क्यों? हद हो गई. उस दिन के बाद से मैंने कोई ऐप अपलोड नहीं की. तो then you were like anti open source. या तो मतलब देखो ओपन सोर्स as a thought is very amazing but as an indie developer who is making money from his apps I don't want to build open source apps. Like मेरे apps have dev tools भी नहीं है जो बाकी लोग यूज करेंगे. They are like standalone apps. तो इनमें open source प्रोजेक्ट इसको open source करने का कोई पॉइंट भी नहीं है क्योंकि कोई इसको फॉक करके कुछ नया बनाने से कोई फायदा नहीं होने वाला. That summer was crazy man. GSOC चल रहा है, क्रायो चल रहा है, 3-4 फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं. 2019 But it was very rewarding because उस टाइम just 2 months later I got the chance to travel outside of India for the first time. Canada गया था. Hack the North होता है यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू. हाँ करेक्ट. उसके 2018 में हुआ था बट वीजा नहीं लगा था उस टाइम. 2019 में जब मौका मिला तब गए और वहां पे मैं अपने जीसॉक मेंटर से भी मिला. तो दैट वाज एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी. वहां पे जाके फिर लगा कि भाई ये फील्ड सही है, मेरे को पैसा दे रही है घूमने फिरने का और करूंगा मैं इसी में कंटिन्यू. तो वहां से वापस आके मैंने रिटेनर पे काम करना स्टार्ट कर दिया विद स्टार्टअप द यूके स्टार्टअप. एंड फिर अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले काफी. आई थिंक सोनी म्यूजिक वगैरह के साथ काम किया और फिर बहुत सारी फुल टाइम आए कहां से तुम यार? फुल टाइम क्यों करने लगे फिर यार? तो 2019 में when this paid work was going on
I was also building Alexa's community in India. I was going across cities, traveling to universities, offices, हर जगह जाके मैं workshops लेता था, उनको पढ़ाता था Alexa, और Amazon was rewarding me. Alexa student influencer बना दिया, Alexa pioneer बना दिया. 2 साल लगातार conferences में मेरे को fly in किया, मुझे awards दिए, Alexa student, Alexa community influencer of the year. मतलब Amazon का पूरा सब हाथ था मेरे ऊपर, कह सकते हो. माई बाप था पूरा पुश कर रहे हैं इसको, जाओ भाई तुम भी करो. फिर बन के आप बढ़ाओ. And I was putting in all my effort कि मैं भी कोई कमी नहीं छोड़ रहा था. महीने में 3-4 workshops ऐसे हर जगह जाके बहुत effort डाला. तो ये सब कर रहा था मैं, सही चल रहा था 2019 एंड फिर 2020 पूरा प्लान था करने का भाई कि यही चलेगा, बट 2020 में यू नो व्हाट हैपेंड कि ये सब रुक गया. एंड मुझे भी भाई, मैं इंट्रोवर्ट था शुरू में, बट फिर ये सब कर करके जो मेरे को कॉन्फिडेंस अंदर से आ गया स्टेज पे बोलने का, रैंडम लोगों से इंटरेक्ट करने का, अच्छा लग रहा था. गॉड कॉम्प्लेक्स बन रहा था. Although I was always down to earth, मुझे पता था मैं कहाँ से उठ के आया हूँ, but still people knowing you, it will give you dopamine rush like anything. सही बात है. But then 2020 happened, pandemic आया, everything needed to be shifted online. उसमें I tried like webinars वगैरह दिए, 1-2 hackathons में, courses भी create किया, O'Reilly के साथ course create किया, Educative के साथ course create किया, but पता नहीं वो फनी नहीं आ रहा था, लोगों से interact करने वाला था मैं. और फिर मेरी डेवलपर जॉब चल रही थी, साइड बाय साइड फ्रीलांसिंग कर रहा था. तो बट दैट पार्ट वाज मिसिंग बिकॉज़ जीरा टिकट सॉल्व कर रहा हूँ यार, दिन भर बैठ के आसान लोगों को साइन कर रहे हैं, उसमें बात उन्हीं 10 लोगों से रोज बात होती है, स्टैंड अप मीटिंग एंड ऑल. तो मजा नहीं आया भाई सही में. और फिर उसके बाद अ कंपनी रीच्ड आउट टू मी. That company had previously reached out to me in 2019. That was my previous startup, Xamarin.ai. Okay. 2019 में they reached out asking me to join their team. And मुझे नहीं पता था क्यों ज्वाइन करना, बस कर लिया मैंने. और फिर वहां पे जाके उन्होंने मेरे से हार्डकोर डेवलपमेंट कराने लगे, C# वगैरह का प्रोडक्ट डेवलपमेंट. That was not my specialty. तो मैं उनको बोल के भागा कि भैया मेरे एग्जाम आ रहे हैं, जा रहा हूँ, एग्जाम के बाद आऊंगा, और कभी वापस नहीं आया. And then 2021 में they reached out to me with a very interesting role कि we want you back. But this time we will not make you work on the product. We want you to do like technical demos, create POCs, sales engineering जो होती है, उससे मेरा पहला इंटरेक्शन होने वाला था उस टाइम. तो उन्होंने मेरे को रोल ऑफर किया. मैंने कहा सुनने में तो अच्छा लग रहा है, करके देख लेते हैं, क्या जा रहा, पैसे को क्यों मना करूं. और ऐसा नहीं है कि मेरे को पिछली कंपनी छोड़नी थी, फ्रीलांस था तो उधर 20 घंटे दे रहा था, इधर 20 घंटे दे रहा हूँ. तो फिर Xamarin.ai के लिए मैंने स्टार्ट करना शुरू किया, कस्टमर से इंटरेक्ट करना, थोड़ा उन्हें डेमोज वगैरह दिखाना, POCs बनाना. देन आई रियलाइज कि भाई बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो रही है ये तो, क्योंकि दिन में अदर कंपनी के लिए मैं एक्चुअली कोड लिख के एप्स बना रहा हूँ, और रात में मैं दूसरों को बेच रहा हूँ कि भाई कोड मत लिखो, ये टूल यूज करो और वही एप्स बना लो. नॉन कम्पीट का कोई सीन ही नहीं था, दोनों एकदम अलग. इंटरेस्टिंग था वो कि Alexa apps writing code and रात में आके एडवोकेट कर रहा हूँ Alexa apps using a no code tool. Oh my god. नहीं तो वो कंपनी was giving you sales engineer वाला जॉब for Alexa नहीं ना, तो it was like they had a common platform. So एक प्लेटफॉर्म है, उससे you can deploy on Alexa, Google Assistant, chatbot, Slackbot, Messenger bot, all sorts of bots. So it was like a one in all platform. तो मेरे को भी अपना डेवलपर बैकग्राउंड कस्टमर्स को समझाने में इजी होता है कि भाई मैं डेवलपर था, मेरे को एक ऐप बनाने में 2-2 महीने लगते थे, तो इससे एक बार 2 महीने लगाओ, सारी ऐप बन जाएंगी. सही बात है. तो बेचना आसान था, बट ठीक है, बट मेरे को दोनों कंपनीज में मजा आ रहा था ऐसे करते करते. तो ये चला 2021 2022 के स्टार्टिंग तक. बट देन उसके बाद यार Alexa फेज आउट होने लगी, क्योंकि GPT आ गए उस टाइम तक. तो उसके बाद से पीपल वर more realizing on the web-based mechanism to find questions, and Alexa was starting to decline. So 2022 में I left that developer वाला job, क्योंकि उसमें भी projects आ नहीं रहे थे honestly, उनको ही नहीं मिल रहे थे, तो वो मेरे को कैसे जब तक वेव से तुमने राइड कर ली उस समय. हाँ, वेव राइड कर ली, बहुत मेरा हो गया था, काफी कॉर्पस बन गया था. तो मैं तो वैसे भी अब 2022 में मैंने Amazon में ही अप्लाई कर दिया था, सोच के कि चलो अब देखते हैं आगे का, सोचते हैं. कुछ हो गया, मस्ती का फेज खत्म. तो Amazon लंदन से ऑफर वगैरह आ गया था, बट देन आई रियलाइज कि यार इट्स नॉट वर्थ इट टू मूव टू लंदन, क्योंकि पे वाज नॉट दैट ग्रेट. एंड like I was working for a UK startup only, उतना ही पैसा मेरे को इंडिया में मिल रहा है. तो सेम पैसे के लिए मैं लंदन जाऊं, वहां पे इतना महंगा रेंट लूं, वो करूं. देखो पे रिलेटिव होती है, ठीक है. तो ये अगर बोल रहा है कि पे नहीं थी इक्वल, तो ऐसा मत सोचना कि पे अच्छी नहीं थी. सही बात. आज ही चल रही थी ना ट्वीट पे बात $2500. उसमें भी मैंने क्या चीज कर दिया इसने. अरे
बताओ। फिर से कुछ कर दिया वो क्या? तुम्हारे बताओ। नया कलेश चालू किया क्या? नहीं, ज्यादा कलेश नहीं था, कोई वही पीपीपी की बातें कर रहा था ट्विटर पे कि हाँ हाउ इंडिया और यूएस का पीपीपी इंटू 6 नहीं है बट इंटू 4 है। हाँ कोई बंदा कमेंट कर रहा है मैं $2500 मंथली में सैन फ्रांसिस्को में रह रहा हूँ। हाँ। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। कैसे कर रहा है भाई? $50 पर नाइट तो हॉस्टल लगता है सस्ता सा वहां पे। हाँ तो पता नहीं, मतलब रेंट ही नहीं होता यार बच्चे हाँ। से तो। अनदर हाँ भाई सच में मतलब बहुत महंगी जगह है यार वो। मतलब स्ट्रीट्स पे रहते हो कैसे? तो तो मेरा वही सीन बैठ रहा था कि अमेज़न की जॉब मेरे को रिजेक्ट करनी पड़ी फॉर दिस रीजन कि इट वाजंट मेकिंग सेंस कि इंडिया से मूव आउट करना। उस टाइम आई आल्सो हाँ। स्टार्टेड माय ब्रेसेस ट्रीटमेंट, तो मेरा छोड़ने का मन नहीं था वो भी बीच हम्म। में, तो पर्सनल रीजंस भी वो आ गए एंड देन इवेंचुअली मैंने रिजेक्ट कर दिया ऑफर एंड देन दे रोट अ ब्लॉग ऑन मी। oh my god Seriously? Yeah, it's on Amazon's website. This For? engineering student left a full-time job to build Alexa skills. what the fuck? They're like इधर से नहीं तो इधर से घी तो हम लेंगे तुमसे। Exactly. Yeah. अरे भाई कैसे ना कैसे करके तो it was वो crazy, चीज but push like कर देंगे। it was a very hard decision to be honest, क्योंकि मैं भाई 2017 से Amazon के लिए काम कर रहा हूँ, तो ड्रीम कंपनी सॉर्ट ऑफ बन जाती है आपकी हाँ। हाथ, और रोल भी था डेवलपर एडवोकेट फॉर Alexa टीम। तो इट वाज लाइक रोल भी तो सारे lucrative- चीजें चेक हो रही थी, बट lucrative रोल है भाई। बट वही यार सैलरी का थोड़ा कंसर्न था एंड देन मूविंग आउट। भाई कोई भी विदेश जाता है अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, गरीबों की तरह रहने के लिए नहीं जाता। एंड फिर जाना था तो रोल थोड़ा सा लाइक रोल टाइटल अच्छा था लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ा अलाइन नहीं कर रही थी। मोर लाइक डेवलपर सपोर्ट रादर देन डेवलपर एडवोकेट, लाइक 60% डेवलपर सपोर्ट, 40% Makes sense. मेरे को चाहिए था कोई 80% डेवलपर एडवोकेसी। तो ठीक है, हार्ड पिल्स वाला क्या छोड़ दिया एंड इवेंचुअली आई थिंक इट टर्न आउट टू बी अ गुड डिसीजन बिकॉज 6 months डाउन द लेन बेजोस साहब का डाइवोर्स हो गया, उन्हें कंपनी छोड़नी पड़ी और फिर नए सीईओ को Alexa टीम से प्यार नहीं था, स्टार्टेड हैपनिंग एंड दैट स्टार्टेड द डाउनफॉल ऑफ Alexa। इतने से ये तो प्रूव हो गया कि लो आईक्यू तो नहीं है। वो तो नहीं है यार। और इससे ये भी प्रूव हो गया कि भाई 80,000 रेंट दिया जा सकता हाँ है। दिया जा सकता है। अगर आप इतना कमा रहे हो 6 साल से तो 80,000 दे सकते हो। मतलब वही चीज तुम बता रहे हो। कितने मतलब ऐसे कितने कलेश हुए हैं भाई तुम्हारे ट्विटर पे? अभी हुए हैं, उससे This पहले तो is- मैं काम की चीजें पोस्ट करता था, उसे तो कोई देखता नहीं था। तो अब इसमें मजा आ रहा है या फिर लाइक इतने लोगों ने कवर कर दिया? यार, मनी कंट्रोल बता रहा मजबूरी हूँ। में शुरू किया। देखो, भाई 22 में जब मैंने Alexa छोड़ा ना, उसके बाद से मेरा सबैटिकल रिटायर कुछ कह लो वो वाली लाइफ चल रही है। हाँ तो अब मैं Alexa से रिलेटेड कुछ पोस्ट भी रेयरली करूंगा, शायद साल में एक बार कर दूं, बट उसके बाद से मैं सिर्फ टाइम पास ही कर रहा हूँ। तो अब मेरे को कलेश ही चल रहा है, चलो टाइम पास हो रहा है, लोग मिल रहे हैं। तो यार ये भी रीजन था मेरा कि स्विच करने का जॉब्स की। भाई हमेशा रिमोट काम किया है एंड जितने भी स्टार्टअप्स मैंने रिमोट काम किया, चाहे वो नो कोड वाला हो चाहे वो यूके का स्टार्टअप हो, सब में मैं इकलौता इंडियन एम्प्लॉय था। कभी उनसे मिला नहीं एंड लाइक बाकी ट्रैवल्स में मिला वो अलग हाँ। बात है, बट ऐसे कोई हमारा ऑफ साइट नहीं हुआ टुगेदर, ये सब कुछ हुआ नहीं। तो ये सब रीजंस थे और मुझे घर से भी निकलना था, दिल्ली में रहा पूरा टाइम। तो मैंने कहा कि अब फुल टाइम जॉब ढूंढते हैं और ऐसा ढूंढते हैं जहाँ पे रोज ऑफिस जाने को मिले, जहाँ लोग बने। तो तो एकदम ही वो मतलब वो हो गया ना कि एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम शिफ्ट कर रहे हैं। हाँ। एक तरफ एकदम रिमोट और ट्रैवल करेंगे, एक तरफ बिल्कुल ऑफिस जाएंगे 5 दिन। honestly, तो 2022 तो मेरा जॉब सर्च में ही निकल गया पूरा। हाँ एंड द गुड थिंग अबाउट इज कि ठीक है, मेरे पास कोई एक्टिव अपॉर्चुनिटी नहीं थी, बट थोड़ा बहुत फ्रीलांसिंग से पैसा आ जाता था और ट्रेडिंग भी मैं करता हूँ। 2021 में पिक हाँ, अप ये किया कीड़ा था। कहाँ से लग गया तुमको? तुम्हारा उस दिन देख रहे थे क्या 70% प्रॉफिट पे चल रहा है तुम्हारा पोर्टफोलियो? वो तो म्यूचुअल फंड है, वो तो हाँ, mutual fund पे। फॉरगेट इन्वेस्टमेंट फॉरगेट है। तो फिर एक्टिव ट्रेडिंग एक्टिव ट्रेडिंग फ्यूचर ऑप्शंस करता हूँ। ओह, तो ये 400 कीड़ा- पार पे कमाई कि नहीं कमाई कुछ? और उसमें अच्छा पैसा बना भाई, महीने का टारगेट 2 दिन में। थैंक यू मोदी जी। But यार, मोदी है तुम। भाई लेकिन उसमें दैट वाज अ वेरी बिग स्विंग। ऐसे हो रहा था उसको उसमें, ऐसा नहीं था कि कमाने के लिए भाई एक्सपीरियंस चाहिए और मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस था, तो हाँ आई पुट इट ऑल But how did you start? So I started इन्वेस्टिंग पहले ऑब्वियसली स्टार्ट करी थी 2020 में जब पैंडेमिक में बड़ा फॉल आया था, तो सुना था कि इट माइट बी अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट ऐसा। तो उस टाइम ज्यादा नहीं, कुछ 20-25 हजार रुपए डाल दिए ऐसे म्यूचुअल फंड में, ऐसा कुछ हुआ नहीं मेजर। 2021 में शुरुआत कैसे करते हैं, जैसे जनरली सारे लोग करते हैं, उनके दोस्त उनको स्क्रीनशॉट भेजते हैं, ये देख भाई कितना प्रॉफिट कमा लिया। हाँ ऐसे करके ही मेरे भी किसी दोस्तों ने भेजा, तो मैंने फिर भी ट्रेडिंग नहीं स्टार्ट की। मैंने आईपीओज में अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया रैंडमली, मुझे पता नहीं था क्या होता है आईपीओ, बस बटन क्लिक कर रहा था पैसे। तो एक दिन एक आईपीओ लग गया रेलटेल का, आई थिंक मार्च 2021 में, एंड वो लिस्ट हो गया प्रॉफिट में। मैंने कहा भाई सब पैसा बैठे बैठे क्या बात। 7-8 हजार रुपए प्रॉफिट हुआ। तो उसी से मेरा डीमैट अकाउंट भी उसी दिन बना बिकॉज ऑफ दैट आईपीओ लिस्टिंग। उसके बाद उसके 1-2 महीने बाद वही दोस्तों के स्क्रीनशॉट आते रहते थे, आज 50,000 कमाया, 40,000 कमाया। ये तो भाई एवरीडे वाला इंटरडे वाले हाँ, इतने पैसे होते हैं इधर। मैंने लगाए थोड़े, पहले ही दिन 20,000 डूब गए। तो फिर ठीक है,
पैसे डूबते नहीं है। फटी नहीं तुम्हारी 20,000 से लेकर 20,000 में तो चल नहीं फटी कुछ उतनी ज्यादा। उसके बाद 80,000 दे रहा है वो रेंट। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत और किया, एक दिन 10,000 कमा लिया, एक दिन 50,000 कमा लिया, फिर एक दिन 30,000 डुबा दिए। ऐसे करके मैं टेलीग्राम ग्रुप्स पे पहुंचा कि भाई कॉल्स वॉल्स कुछ होती है, पुट कॉल ये सब, फिर मैंने वहां से ले लेके करनी शुरू कर दी। एक उसमें क्या होता है मुझे नहीं पता यार रैंडम टेलीग्राम ग्रुप होते हैं जिसमें फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर तुम्हें बताएंगे कि ये वाला स्टॉक ले लो या ये वाला पुट ऑप्शन बाय कर लो, कॉल ऑप्शन बाय कर लो, अच्छा पैसा बन जाएगा। ओके तो मैंने ऐसे ही लिया एक बंदे से, और कुछ पेड ग्रुप्स, मैंने सब्सक्रिप्शन लिया भाई 4-5 हजार रुपए दे दिए उसको कि, और फिर उसमें मेरे 7-8 लाख रुपए डूब गए। अरे भाई साहब अबे तो क्यों भाई ऐसे कैसे काम कर रहे हो? तो गेम स्टॉप वाली कहानी बता रहा है कि सब लोग एक ही जगह पे लगा दो, एक ही जगह पे कर दो, अलग अलग हो रहा था। बैंक निफ्टी में डूब रहे, निफ्टी में डूब रहे, टाटा पावर में डूब रहे, टाटा केमिकल में। तो मेरे को तो पुट कॉल का मतलब नहीं पता था जब मेरे 8 लाख रुपए चले गए। क्या वो बटन है उसने बोला दबाने का भाई चार्ट पैटर्न नहीं आता था मुझे देखना, बट मैंने अपने आप को बस एक चीज बताई, भाई शांत बैठ, तेरी 1 महीने की सैलरी गई है बस, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, कमा लेंगे, लेकिन क्विट नहीं करना है। क्योंकि ये मार्केट वाले लोग यही बोलते हैं कि 90% ऑफ द ट्रेडर्स लूज 90% ऑफ देयर कैपिटल इन फर्स्ट 90 डेज। ओह अच्छा। तो वही हुआ है। तो एट दिस पॉइंट यू कैन आइदर क्विट और यू कैन हैव पेशेंस। पेशेंस मेरे में कूट कूट के भरा है बचपन से। तो पेशेंस था मेरे अंदर कि जो मेरे 8 लाख रुपए डूबे हैं 2 महीने में, उसको रिकवर करूं। वो रिकवर करने में मेरे को 2.5 साल लगे। उतना पेशेंस रखा मैंने। एंड ठीक है, जब पैसे डूब गए मैंने सब कुछ बंद किया, एक जगह से और कोचिंग ली, उस कोचिंग का कोई फायदा नहीं हुआ, 20-25 हजार रुपए उसको भी दिए, बट उसने मेरे को बस एक चीज बताई कि भाई रुक जा, थोड़ा पढ़ ले। तो बस रुका उस वजह से 1-2 महीने में, और फिर मैंने यूट्यूब से ही सीखा। फिर कोचिंग का कोई फायदा नहीं हुआ, यूट्यूब से मैंने 1-2 चैनल आइडेंटिफाई करे, उससे मैंने सीखा कि मेरे लिए ऑप्शन सेलिंग एक टेक्निक होती है जो मोर सक्सेसफुल होती है, बट लेस हाई रिस्क, मोर सक्सेसफुल। ऑप्शन बाइंग में आपका चांस होता है 33% प्रॉफिट का, सेलिंग में आपका चांस होता है 67% प्रॉफिट का, बट उसमें कैपिटल ज्यादा लगता है। बाइंग आप 5,000 10,000 से कर सकते हो, सेलिंग करने के लिए आपको मिनिमम 1.5 लाख रुपए चाहिए। ओके। तो मेरे पास कैपिटल था थैंकफुली, और मेरे पास पेशेंस भी था, और मैंने कहा ये मेरे लिए ज्यादा सूटेड टेक्निक है। तो वो मैंने सीखा अच्छे से पूरा यूट्यूब से, और फिर उससे कंसिस्टेंटली इनकम कमाने लगा। बीच में भाई ऐसा फेज आया 16 महीने तक मेरा 1 रुपया लॉस नहीं हुआ, एक भी दिन, और मैं रोज ट्रेड कर रहा हूँ। किस पे तुमको एंजाइटी नहीं लगी कि यार ये जो सब नहीं, सही बहुत सही कैसे हो रहा है? नहीं, कॉन्फिडेंस था ना टेक्निक पे, मैं कर रहा हूँ इसलिए सही हो रहा है। अगर मैंने भी खुद पे काबू रखा भाई, रिस्क नहीं यार। इम्पोस्टर सिंड्रोम इज लाइक साइड बाय साइड थिंग देन गॉड कॉम्प्लेक्स। तो मतलब दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। तो अगर 16 महीने से कोई लॉस नहीं हुआ है तो कभी लगता है कि भाई कुछ तो सही पता नहीं चल रहा है कि नहीं चल रहा है। The only thing which could have given me a bigger loss was कि कुछ मेजर इवेंट इंडिया में ग्लोबल लेवल पे हो जाए, तभी मेरा लॉस लगता। अदरवाइज जो मेरी स्ट्रेटजीज बन गई थी, मैंने बहुत टाइम दिया था। I was also not working at that time, तो एफर्ट डालने में मुझे कोई इशू नहीं हुआ, और मैंने फिर सीखा पूरा। एंड ठीक है, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने क्विट नहीं किया। मैंने पैसे से पैसा बनाना सीख लिया उस टाइम। तो जो मेरा जॉबलेसनेस वाला फेज था 2022 वाला, उस टाइम मैं कंसिस्टेंटली ट्रेडिंग से अप्लाई कर रहा था जॉब्स के लिए उस टाइम पे। हाँ, बस अप्लाई किए जा रहा था। तो उस टाइम पैसा आ रहा था कहीं से, और मैं घर पे रहता था यार, 10,000 रुपए महीने का खर्चा था मेरा मुश्किल से। तभी तो। अरे दूसरी चीज ये है, अगर व्हेन यू आर सेइंग दिस आई रियलाइज कि मतलब इफ यू हैव लॉस्ट योर मनी, राइट, और इफ यू हैव, वो होता है संक कॉस्ट फैलेसी वाला चीज है कि अगर तुमने थोड़ा पैसा डाल चुके हो और वो डूब गया, if you quit you will never be able to recover it, but there's a chance you can recover it if you do it the right way for a long time. Same thing goes with I think a lot of skills but people like going to not money, just money, कि अगर तुमने थोड़ा कुछ सीख लिया, उसका कोई यूज नहीं दिखा, आपने छोड़ दिया, यूज नहीं दिखा, तुमने छोड़ दिया। अगर जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आज के मास्टर ऑफ वर्ड बनने की कोशिश नहीं करी, कि तुमने मर्न करना है, नहीं करना है। अरे भाई तो तुम इनफ टाइम करो ना उस चीज को, तुम इनफ टाइम उस चीज पे दे नहीं रहे हो, पेशेंस नहीं होता भाई लोगों में। करेक्ट। पेशेंस वाला इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि तुम इतना टाइम नहीं दे रहे हो उस चीज पे। तुमने थोड़ा सा किया, ये थोड़ा सा किया, वो थोड़ा सा किया, वो तो तुम्हारा कहीं भी तुम्हारा हिट नहीं गया ना। देयर इज अ एक्टिवेशन एनर्जी बिफोर आफ्टर लाइक दैट यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि दिस इज यूजफुल। दिस इज अ सुपर पावर दैट्स one has to build. Patience होना बहुत जरूरी है बहुत चीजों के। कभी कभी it backfires कि you shouldn't have been patient। अगर आप किसी से बात करने जा रहे हो, you should go and talk। Patience मत रखो उस केस में। Patience पे कटवाए हो ना, ऐसा हुआ है, बहुत बार हुआ है भाई। तो वो चीज होती है। तो यही सब था भाई। 2022 मेरा पूरा जॉब में गया। उस टाइम I was applying left, right and center, मशीन लर्निंग के स्टार्टअप्स में, ऑटोमेशन टेस्टिंग के स्टार्टअप्स में। अरे भाई साहब, कोई फिनलैंड का कोई सस्टेनेबल एनवायरनमेंट वाला स्टार्टअप था, उधर भी चल रहा था इंटरव्यू। कहीं मतलब ऐसे देखा नहीं जहाँ से पैसा आ सकता है। पैसे का भी नहीं था कि मतलब
अप्लाई, क्योंकि जो मेरी नो कोड वाली कंपनी थी उसने हाँ। मेरे को वो कस्टमर फेसिंग रोल का एक्सपीरियंस दिला दिया। मैंने कहा भाई अब जाना है तो इसी रोल में जाना है, और डेवलपर एडवोकेसी करनी नहीं है, क्योंकि आई डोंट फील कंफर्टेबल डूइंग दैट। कि कुछ लोगों के लिए वो नेचुरल आता है, जैसे आदित्य मेरा फ्रेंड भाई तो सब जानते हो, काफी सही करता है वो। लेकिन ठीक है, मैं आई प्रेफर मोर अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट जहां पे लाके मैं लोगों को मैनिपुलेट कर सकूं अच्छे से, टू सेल माय बातों से काट सकूं। बैठने चूतिया बना सकूं। मतलब इट कुड आल्सो बी लाइक मोर सेंस ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट इज अ वेरी गुड टर्म टू बी ऑनेस्ट उसके लिए, कि वहां पे तुमको पता नहीं थिंग्स कैन गो लेफ्ट राइट कहीं भी चली जाएगी। यहाँ पे एटलीस्ट यू हैव सम ब्रेन टू पुट एंड स्टीयर इन डायरेक्शन। जाएंगे भी तो कोई तीसरा नहीं सुन रहा। तो ये सही लगता है मुझे, इसलिए मैंने कहा था कि ये रोल ज्यादा इंटरेस्टिंग है कंपेयर टू डेवलपर एडवोकेसी, एंड काम मोर और लेस सिमिलर रहता है। तो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड अप्लाइंग टू दीज रोल्स इन डिफरेंट कंपनीज। शुरू में था कि बार अप्लाई कर रहा था, मेरे को भाई कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर कि मेरा रिज्यूमे इतना तगड़ा है कि आराम से हो जाएगा जॉब। नहीं मिली कि भाई छोड़ दे, इंडिया में देखते हैं जॉब, ऐसे बाहर जाओ, क्योंकि 2022 एरा तक जिर पेरा खत्म हो रहा था, एंड आपको बाहर स्पॉन्सरशिप मिलना वाज गेटिंग टू डिफिकल्ट। सो कभी थोड़ा रिग्रेट होता है अमेज़न की जॉब क्यों नहीं ली लंदन वाली, बट ठीक है, इट्स फाइन। And I started attending conferences बाहर in the hope of getting a job. Like यूरोप में दोबारा मैं गया घूमने कॉन्फ्रेंस के बहाने, एक अटेंड किया, फायदा नहीं। नवंबर दिसंबर में रीइन्वेंट के लिए गया, जो कि मैंने सोचा यहाँ तो मिलनी ही है जॉब, यहाँ नहीं मिली तो कहीं नहीं मिलेगी। एंड वहां जाके मेरा इतना गंदा एक्सपीरियंस रहा, रिक्रूटर्स से मैं बात कर रहा हूँ, भाई डू यू हैव अ जॉब, दे आर लाइक चेक आवर करियर्स पेज। अबे यार ठीक है इसीलिए आया हूं ना मैं इंडिया से उठ के आया हूँ भाई, तुमसे जॉब वापस वही भेज रहा। अरे एटलीस्ट खोल के देख लो, नहीं है यार यही बता दो देख के भाई, सही इतना तो एफर्ट कर सकते हो यार। तो रियलाइज हो गया मेरे को कि मार्केटिंग इवेंट्स में क्या होता है, बड़ी सब चिल करने आ रहे हैं, सब वेगस में पार्टी करने आए हैं, सब नेटवर्किंग और ये सब चीजें हैं, बट आई डोंट थिंक सो इट विल लीड टू एनीथिंग कॉन्क्रीट। डिप्रेसिंग हो गया वो सिनेरियो मेरे लिए कि मैं कोविड भी हो गया था मेरे को उस टाइम, एक हफ्ता एक्स्ट्रा रुका मैं यूएस में। एंड देन जब मैं वापस इंडिया आया, आते ही आने के दूसरे दिन मैंने जीमैट का एक कोर्स ज्वाइन कर लिया। मैंने कहा भाई जॉब नहीं मिलने वाली, एमबीए करते हैं। करना है एमबीए क्या अब? नहीं, उसके बाद फिर और चीज हुई, मास्टर्स नहीं करना है? नहीं, अभी तो इमीडिएट प्लान्स नहीं है, बट उस टाइम जीमैट की कोचिंग टीटीपी ज्वाइन किया, उसमें 2-3 महीना काम किया, बट इंटरव्यूज भी रैंडमली थोड़ा बहुत अप्लाई कर रहा था तभी तक, बट लेकिन माइंडसेट बना लिया था कि अब तो एमबीए करने जाना है, क्योंकि एक रीजन और था कि बाहर की कंट्री में जॉब चाहिए, वर्क वीजा चाहिए। बाहर से आप डिग्री कर लो, वर्क वीजा तो मिल जाता है फिर प्यार से, तो इसलिए एमबीए भी जरूरी था। बट उसमें फिर मेरे एक जगह एक स्टार्टअप में इंटरव्यू हुआ, उन्होंने 8 राउंड लिए। भाई सबसे गंदा इंटरव्यू था मेरा वो, मतलब 8 राउंड। 8 राउंड में क्या इवैल्यूएट कर रहा है भाई? सीईओ का इंटरव्यू है क्या? ऑनलाइन इंटरव्यूज हुए, कोडिंग चैलेंजेस हुए, फिर इन पर्सन इंटरव्यू हुआ। उन्होंने अपनी मीटअप में बुला के मेरे से एक टॉपिक पे सेशन दिलवा दिया। बाप रे भाई, चेक की हाउ डू आई डिलीवर ऑन दिस इज एक्सप्लॉइटेशन एट दिस पॉइंट, टू बी ऑनेस्ट भाई। ये इंटरव्यू के नाम पे मार्च 15 को उसका फाइनल कॉल आया, मार्च 19 को मेरा बर्थडे था। मैंने कहा भाई ये तो ऑफर आया पड़ा है, इनकी टीम के साथ मैं इतने सेशन वेशन दे रहा हूँ, 1 महीने के लिए धर्मशाला जाऊंगा, मस्त वहां से काम करूंगा। मार्च 15 को वो कहते हैं कि हमने 2 लोग हायर करने थे, 1 हायर कर लिया, अब दूसरे की जरूरत नहीं लग रही। भाई क्या चोद हो गया, पैसा नहीं मांगा फिर क्या वो, मैं भाई मेरा माइंड नम हो गया कि भाई यार 8 राउंड देने के बाद ना किसी का अगले 2 महीने अपने बना के बैठा था, अप्रैल में इनका इवेंट है, वहां के लिए यूएस जाऊंगा, ये करूंगा। तो इसलिए यार ये तो बर्थडे का मत क्या करो भाई चीजें, ठीक है? अब ये प्रूव हो गया, हर बेटी होती है भाई। आजकल बस फिर अब ट्विटर पे क्लेश करते हो मस्त। और ट्रैवल प्लान्स। और सबसे क्रेजी क्लेश क्या हुआ अभी तक का? यही है अभी तक तो। क्या 80,000 वाला? इतना फेमस तो किसी ने नहीं किया। कितने इंप्रेशन उस पोस्ट पे? 1 मिलियन कुछ हो गए थे ना उस पे। भाई वो स्टार्ट क्यों हुआ? मेरे को तभी भी समझ में नहीं आई वो यार। वो स्टार्ट ऐसे हुआ कि मैं भाई मस्त कोई मूवी देख रहा था, मेरे को आइसक्रीम खाने की चल जाएगी, फ्रिज में आइसक्रीम रखी थी, मैंने फ्रिज से आइसक्रीम निकाला, बालकनी में गया, फोटो खींच रहा हूँ, आइसक्रीम की डालूंगा, दोस्तों को भेजू। अरे तो देखा रेनबो दिख रहा है, उसकी फोटो लेते हैं। छोड़ो आइसक्रीम, रेनबो की फोटो नहीं, ऐसे भाई वैसे मैं 10-15 पोस्ट डाली होंगी पास्ट में कि बारिश होती है तब मैं फोटो खींच के डाल देता हूँ। आज तक कोई ऐसा हिट नहीं हुआ, बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड दैट डे, बट कि वो लोग कमेंट करने लग गए पागल हो गए। तो तुम बराबर से लड़ते हो कि नहीं लड़ते हो? आई डोंट, कुछ तो डालते हो रिप्लाई, जब जैसे तुम्हारा किसी यार मेरे साथ कोई करता ही नहीं, मैं बहुत ही शांति प्रिय स्वभाव का आदमी हूं। मेरे से लोग नहीं लड़ते, मुझे पसंद भी नहीं है कि, बट आई रेयरली टेक अ स्टैंड, क्योंकि मैं उस पोस्ट को म्यूट कर देता हूँ। मेरे आप म्यूट लिस्ट देखोगे, आधे ट्विटर इन्फ्लुएंसर्स हैं उसमें, ताकि
नहीं मतलब वो चीज या क्योंकि वो मोस्टली कलेश करते रहते हैं, मेरे को पसंद नहीं है। अब वो वाला है ना कोट यार, यू आइदर डाई हीरो, क्या है वो? die young as a hero or Live long enough as a to- villain. See yourself become the villain. या वही चीज हो रही है मेरे साथ, अब लग रहा है मेरे को। मतलब बट ठीक है यार, कभी कभी ऐसे एंटरटेनमेंट के लिए चल जाता हाँ, है। आई एम ग्लैड कि वी बट ऐसे क्या उस जर्नलिस्ट से दोबारा ऐसे बात डीएम में बात हुई कि क्या क्या चुल थी, क्यों किया? यार वो भी वही कर रही थी जो मैं कर रहा था, रीच ले रहे थे। इंप्रेशन फार्मिंग। हाँ, So impression farming कर रहे हैं भाई बैठ के। तो ठीक है, टाइम पास के लिए ये सब चीजें सही है, बट डोंट लेट दिस बिकम योर पर्सनालिटी। हाँ एंड मतलब so that people only know you for this, या वो थोड़ा सा weird हो जाएगा। True. मतलब you have earned so much अभी in the past this year. How do you think about money now? Like what is have you reached fire already? 5 Fire number already have you? 2 years back, Okay. So फिर अब now अब क्या? everything is like winging it right now। बस अब कुछ भी जहाँ यार मन अब करे। काम ना देखो, अभी I also tried interviewing in last 2-3 months and I was getting like 2x the pay what Okta is offering me. Startups mostly pay, even like a couple of MNCs were ready to pay, but it's like I like this company, I like the product, I like the environment. So money is no longer a motive for me. Like why the hell would I move to Bangalore when I was earning so good in freelancing? At least 10 times what Okta is paying me. Correct. तो see, जो मेरा बैकग्राउंड है उतना मतलब फाइनेंशियल स्ट्रांग था नहीं, बट थैंकफुली आई वेंट टू गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, तो कुछ लाइबिलिटीज भी नहीं हुए उस वजह से। माय पेरेंट्स आर सेल्फ सस्टेनेबल, हमारा अपना खुद का घर है दिल्ली में, तो ऐसा कुछ, आई एम अ सिंगल चाइल्ड, तो कोई लाइबिलिटीज नहीं है, एंड पापा जॉब करते हैं, सब सॉर्टेड है। तो व्हाटएवर मनी आई अर्न, आई रियलाइज कि मेरा खर्चा ही नहीं है भाई ज्यादा, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन हुआ ही नहीं, मेरे कोई लग्जरीज ऐसे है नहीं। ऐसा क्यों है? मतलब when you're earning ऐसा नहीं होता कि चुरारी ये खरीद लेते हैं, because when you're coming from a non-privileged background, doesn't it like feel कि यार मेरे पास ये होना चाहिए? सपने ज्यादा बड़े देखे नहीं यार बचपन में कभी। ऐसी बात तो नहीं है यार, देखो जो देखे मॉडेस्ट हो रहा है अब तो। हाँ हम्बल हो रहा है भाई। लैम्बोर्गिनी खरीदने का सपना नहीं था भाई कभी, सही बोले तो। बट जो थोड़ी बहुत चीजें चाहिए थी, बेसिक नेसेसिटीज को इम्प्रूव करना, स्लीपर में नहीं ट्रैवल करना, एसी में फ्लाइट में ट्रैवल करना, वो सब अचीव कर लिया। एंड वो सब करने के बाद यू रियलाइज कि ठीक है, आइदर योर लाइफस्टाइल कैन इन्फ्लेट, दैट्स व्हाट हेल्प मी इन दैट जॉबलेसनेस फेज, कि मेरा कुछ ऐसा इन्फ्लेशन हुआ ही नहीं था, आराम से मेरे को कम भी मिलता चलेगा। तो इसलिए जब मैं जॉब ढूंढ रहा था तो मेरे लिए बेयर मिनिमम चाहिए था रहने के लिए। लाइक मिनिमम जब कॉलेज में था तब सपना देखता था कि 1 लाख पर मंथ की सैलरी होगी कभी फ्यूचर में, तो लाइफ सॉर्टेड होगी, तो उतना ही मेरा थ्रेशोल्ड था शुरू से। कि उसके बाद लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स आ जाएगा, एक्स्ट्रा पैसा आए भी तो कोई फायदा है नहीं, बैंक में भर के कोई फायदा नहीं। और कोविड के बाद ये भी दिमाग में आ गया कि भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है, पैसा धड़ा का धड़ा रह जाएगा, पैसा चेज करने का भी कोई पॉइंट नहीं है। सो नाउ फॉर मी आई थिंक द ओनली थिंग आई वांट टू डू इज ट्राई न्यू थिंग्स, एक्सप्लोर। लाइक लास्ट 2 years में ही मैंने 18-19 कंट्रीज घूम लिया है, एंड अभी फिर 2-3 कंट्रीज घूमने का प्लान कर रहा हूँ। तो थोड़ा 2-3 महीने काम करता हूँ, फिर Where do you fund this from? Do you fund this from your options वाला like trading का background या फिर like from the job? Savings do you keep savings mostly या फिर like do you have like कि सब कुछ spend कर देंगे उस पे? नहीं, I didn't spend any money in that phase. Not spending, like you'll invest that money somewhere, you trade that money. Yeah, I invest some amount, like a bare minimum I invest. Most of my money is in FDs, which is very different from what the world says. Not most, but at least 25% of my portfolio is in FDs, and around 25% is in mutual funds, and rest 50% is me trading capital. And yeah, so trading capital I never withdraw. I just keep on increasing that capital. And salary ठीक ठाक दे देता है अब तो, उससे हो जाता है खर्चा। क्योंकि बैंगलोर में रहने का खर्चा इज लाइक 50-60,000 मंथली, उससे ज्यादा नहीं होता। वैसे कुछ हर वीकेंड पार्टी ये सब नहीं है मेरा, वंस इन अ ब्लू मून कर लिया। This is excluding rent, right? Yeah. इतना तो नहीं। हाँ, I think अगर तुम see, I live in a 3 BHK, man. Rent is not 80K just for me. It's like that is true. That is true. It comes down, the house costs including cook, maid, electricity, everything comes down to like 35 groceries वगैरह लेके 40-45 में घर चल जाता है। उसके अलावा मे बी मंथ में 5,000-10,000 एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, आउटिंग्स, कैब वैब इन सब का लेके, तो 50-60,000 इज अ डिसेंट अमाउंट। एंड या ऑक्टा से भी जो सैलरी मिलती है वो भी बच जाता है। 2-3 महीना इफ यू सेव यू कैन मेक अ 2 weeks trip anywhere. Makes sense. Earlier in that sabbatical phase I did Europe and US, so अब I'm trying to go to places which are relatively less explored. So last year I went to China and Singapore, and then this year I went to Mexico. अब सोच रहा हूँ फिर से कोई Pacific Island, Oceania type try करो next year. फिर you don't have any like financial liabilities or something from home? Nothing, or somewhere? Thankfully.
I'm grateful for that. I think that plays a major part in at least the mindset, to be honest. Yes. कहीं ना Yeah. कहीं. I Otherwise, the had financial liabilities liability, at a time, but I cleared it all when I was in university itself. So by third year, I was able to pay off the home loan that we had. I was able to buy a car for my dad, and everything. I did it all. And personally, I never wanted any of those things for myself. That's why I don't have a car in my name, a bike in my name, or any home in my name. I never had. I rely on public transportation. That's why I love public transportation. We generally end with this famous question for ours, which is, have you found the chance to like break something so terribly? And for some client, for you, it will be a client or something, or something broke for you terribly in general. I think there are two aspects to it. There were instances when I purposely broke the fraud. That is interesting. Yeah. So in freelancing, when you don't get payment, you break you it. How did you manage to do that? क्या किया था उसमें? Code access था delete कर दिया. What the fuck? DNS से हटा दिया पूरा. This was an Alexa का कुछ. Yeah, Alexa. वो बोल रहा है This was Alexa for की an मैं नहीं सुन रही. insurance. This was for an insurance company. One of the biggest projects I ever worked with in 2020, 2021. And I was like half the payment didn't come and they were not responding to me, so I just deleted the whole backend at one time. And I tried my best. I asked them 5-10 times. There was no response. And they were dumb enough to not restrict access. उनका reply आया कुछ? हाँ, 1 महीने बाद आ गया. Why did you do that? I was in hospital. They were अरे भाई इतना बहाने मार रहे थे. फिर पैसा मिला वापस? फिर ठीक है, मैंने भी थोड़ा सा जल्दी रिएक्ट किया. फिर हमने पैसा मिला. They deducted like 500,000. चिल है. मैंने कहा चलो ठीक है. और दूसरे वाले का जिसने मेरा 10,000 USD नहीं दिया, उसका भी मैंने सारा डिलीट कर दिया. उसने रीच आउट ही नहीं किया दोबारा. मैंने कहा ठीक है, चल है उसका भी. एंड the second aspect is when things failed for me publicly was I built an app for Sony Music back in 2020. कोविड के पीक में बनाया था. हैंड वॉशिंग से रिलेटेड ऐप था. देयर वर लाइक 20 सिंगर्स से हमने कांटेक्ट किया था एंड सब 20 सेकंड का एक गाना गाते थे अलेक्सा पे कि दैट्स द टाइम यू विल वॉश योर हैंड्स फॉर. ओके, इंटरेस्टिंग है. तो उसमें एक सिंगर है डोडी, उसके 1 मिलियन प्लस फॉलोअर्स थे शायद उस टाइम. तो उसके साथ कोलैब किया था हमने एंड ऐप बन गई, लाइव हो गई, सब कुछ हो गया. एंड डोडी ने एक वीडियो डाल दी अपने सोशल्स पे, हाउ टू यूज दिस ऐप. भाई उसके वीडियो डालते ही अगले 10 मिनट में इतने दिस इज नॉट वर्किंग, व्हाट इज दिस शिट, ये सब ऐसे आने लग गया. तो भाई मेरी फटी क्यों हुआ क्या यहाँ पे. तो फिर भी रियलाइज कि हमने चलो यूज करने तो बोल दिया, हमने किसी को ये नहीं बताया कि ऐप इंस्टॉल भी करना होता है. भाई ये अभी सोच रहा था कि लाइक एवरी टाइम यू हैव टू इंस्टॉल दैट ऐप आल्सो. नहीं ऐसे थोड़ी कि तुम एलेक्सा को बस दुनिया में किसी ने ऐप बना दिया तो अपने आप उसको समझ में आ गया कि कैसे काम होता है. तो ये प्रॉब्लम मार्केट हमने दिया था, जिसका सोनी म्यूजिक के मार्केटिंग कंपनीज ने ये सारी चीजें डाली नहीं. तो बस फिर उसको फिर फॉलो अप एक ट्वीट डालना पड़ा. तो उनका ब्रेकिंग प्रोडक्ट हो गया. बट लाइक इट रिफ्लेक्टेड की प्रॉब्लम कहां से आ गई. वो एंजाइटी तो यहाँ आ गई ना. It all come down to me, but thankfully my team was supportive because they knew it is none of my fault. It's like an end user marketing issue. But imagine the scale of it. Like, इतनी भयंकर रीच में आपके साथ यही हो रहा है, लोग गरिया रहे हैं, कैसे हैंडल. Amazon is involved, Sony is involved, my company is involved. और प्रेशर किस पे आ रहा है कि 20 साल का बच्चा दिल्ली में बैठा है. इसने ऐसा कुछ बना दिया, चल नहीं रहा यार. मेरे तो चल रहा है यार. मेरा लैपटॉप बंद कर जा. ये बोल रहा है इट वर्क्स ऑन माय एलेक्सा जाके. Actually, yeah. So yeah, that was like that kind of experience that I have ever had. बाकी तो चलता रहता है. Intentionally था mostly breaking my fraud. Cool. भाई this was fun. मजा आया मेरे को. तो बहुत insightful था यार. मेरे लिए बहुत सारी चीजें मैंने सीखी इसमें. बहुत सारे मतलब mindset वाला गेम था today.